بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والأئمة المحدثين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فحدثنا شيخنا وسيدنا مولانا محمد سرفراز حفظه الله تعالى وأكرمه في الدارين قال: حدثنا الشيخ العلامة ومؤسس الجامعة الفاروقية الشيخ سليم الله خان رحمه الله تعالى وقدس سره قال: حدثنا الشيخ شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى عن الشيخين الجليلين الكريمين عن شيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتفي رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي رحمه الله تعالى، وهما يرويان عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى عن العارف بالله شيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم القردي رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناري رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال: قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجاري رحمه الله تعالى عن الشيخ السراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي رحمه الله تعالى عن الشيخ عبد الرحمن بن مزفر الداودي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزمة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. मेरे सामने जो किताब है ये हदीस के फन में है। हदीस किसे कहते हैं, हदीस की अहमियत क्या है, और इस किताब के मुसन्निफ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कुछ अहवाल और आखिर में हदीस पर चंद बातें अर्ज करके मैं इंशाअल्लाह अपनी बात समेटने की कोशिश करूँगा। ये मजलिस आम मजलिस नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
इरशादात फरमाते थे तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन इतनी तवज्जो से बैठते थे, लगता था जैसे सरों पर परिंदे बैठे हैं। और इतने मिल मिल के बैठते थे कि एक ही चादर के नीचे सारे ही आ जाए। चादर अगर ऊपर डाली जाए तो बीच में खम ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़लल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा फ़रुब्ब मुबल्लिग़ि फ़िक़्हिन अव आलहु मिन सामिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला उस आदमी को सरसब्ज़ व शादाब रखे जिसने बहुत तवज्जो से मेरी बात को सुना, याद किया, औरों तक पहुंचा दिया। तो जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमें भी ये मौका अता फरमाया है कि हम आज अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन सकते हैं, सुन रहे हैं तो तवज्जो से सुने, नियत करें कि इंशाअल्लाह आगे भी पहुंचाएंगे, खुद भी अमल करेंगे। तो वो जो दुआ है आपकी कि अल्लाह ताला उस आदमी को सरसब्ज़ व शादाब रखे, इंशाअल्लाह वो दुआ भी मिलेगी। अगर आप अपने मोबाइल को बंद करेंगे और तस्वीर की तरफ तवज्जो नहीं रखेंगे, खालिसतन एक नूरानियत आपको महसूस होगी। अभी आपके ऊपर है, आप चाहें तो उस नूरानियत को ले लें, चाहें तो तस्वीरों में लगे रहो। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि हदीस का नूर हासिल करने के लिए मजलिस की नौयत बदलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। पहली बात, हदीस किसको कहते हैं? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। आपने फरमाया अल मजालिसु बिल अमाना इन्नमल आमालु बिन्नियात अद्दीनुन नसीहा। ये जो आपके इरशादात हैं इसका नाम हदीस है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में ज़ोहर और असर की नमाज को जमा फरमाया, मुज़दलिफा में मगरिब और इशा की नमाज को जमा फरमाया। ये अफ़आल भी हैं, इन्हीं अफ़आल को हदीस भी कहा जाता है। और नंबर 3, तकरीर, जिसकी जमा तकरीरात। किसी मुत्तबे शरीयत, किसी साहबी रसूल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करते हुए देखा मगर कुछ फरमाया नहीं, खामोश रहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खामोश रहना दलील है कि ये काम जायज है और ये भी हदीस है। आपका चुप रहना भी हदीस है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं बीच में एक जुमला मोतरजा डाल रहा हूं। एक साहब आए, रात को हम एक शादी हाल में थे, दुनिया भर की बेहयाई और यानी फहाशी वहां थी, गाने बजाने सब चल रहे थे। इलाके के मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा थे, शेखुल हदीस साहब भी आए हुए थे, इमाम साहब भी थे, कोई नहीं बोला। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इसका माना यह है कि कोई लचक होगी, जभी तो ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे अकाबरीन मशाइख को। जभी तो वो फरमाते हैं ऐसी मजलिसों में न जाया करो, लोग आपको देखकर उस काम के जायज होने पर दलील बना लेंगे कि ये जायज है, जभी तो मुफ्ती साहब बैठे हैं, तो नहीं जाना चाहिए। अगले को क्यों मौका देते हो इस तरह की दलीलें पकड़ने के लिए? और अगर आप चले ही गए तो हिकमत, बसीरत और दानाई के साथ उस गलत काम को रोको, मना करो, भाई ये गलत है। मैं अर्ज कर रहा हूं आपको नहीं जाना चाहिए था मगर चले गए, मना करना चाहिए था मगर न कर सके। तो इसके बावजूद भी अवाम को इस बात का इख्तियार नहीं
कि वो किसी मौलवी और मुफ्ती की शिरकत को देखकर नाजायज काम के जवाज पर दलील हासिल करें। जो काम नाजायज है शरीयत में वो नाजायज है, ख्वाह कोई मुफ्ती शेखुल हदीस उसमें जाए ना जाए, बोले ना बोले। मुमकिन है इसकी कोई अपनी मजबूरी हुई हो, जब तो ये चुप बैठा हो, वरना नबी की खामोशी हुज्जत हो सकती है। किसी मौलवी की खामोशी उस काम के जायज होने की दलील और हुज्जत नहीं। ये अल्लाह की शान है, सुभान अल्लाह, कि वक्त का जो भी नबी होगा वो गलत काम को देखकर फिर चुप नहीं होगा। जब ही तो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि जो गुफ्तगू हुई कुरान मजीद में, वो कलाम गुफ्तगू मौजूद है, उसके अंदर बाकायदा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार बार बोले जा रहे हैं, मुआहिदे में तय हुआ कि नहीं बोलेंगे, फिर भी बोल रहे हैं। वो दरअसल लतीफ इशारा है, नबी गलत चीज को देखकर चुप नहीं रह सकते, वो बोले। उनकी शरीयत में ये सारी चीजें जायज नहीं थी, खिज़र अलैहिस्सलाम के यहाँ जायज होंगी। जब जायज नहीं थी तो ये बोल पड़े कि ये गलत हो रहा है। तो मैंने बड़ी अहम बात अर्ज की कि किसी नबी का खामोश रहना ये उस काम के जायज होने की दलील है, मगर किसी मुफ्ती शेखुल हदीस इमाम का किसी गलत काम के मौके पर चुप रहना ये उस काम के जायज होने की दलील नहीं। नंबर 2, दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये, बहुत सारे लोग एक बात कहते, फितने का दौर है ना, तो जो बहुत सारे फितने उठ रहे हैं उनमें से एक फितना आज के दौर का ये भी है मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फितने का दौर है, जैसे बहुत सारे फितने उठ रहे हैं। एक फितना इनकार हदीस का भी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुस्तकिल एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। या अल्लाह मैं फितनों से पनाह चाहता हूं, जाहिरी हो या बातनी हो, इन फितनों से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उन फितनों में एक फितना आज के दौर का वो है इनकार हदीस। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो बड़े आराम से एक जुमला कह देते हैं, बस हम तो कुरान की मानते हैं, जो कुरान में है वो मानेंगे, बाकी हदीस जो अकल में नहीं आती तो कैसे माने। याद रखें, कुरान मजीद की तशरीह हदीस में है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाया, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। हमने कुरान इसलिए नाज़िल किया कि इसको आप आगे बयान फरमाएं। अगर आपकी बात हुज्जत ही नहीं है तो आपको बयान करने का हुक्म किस लिए दिया जा रहा है। और फिर जो लोग मुनकर हदीस हैं वो हकीकत में मुनकर कुरान भी हैं, इसलिए कि ये कुरान कलामे इलाही है। ये बात तो हमें अल्लाह के नबी ने बताई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सूरह अलक की 5 आयात नाज़िल हुई, ये बात तो हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो अगर हदीस का इनकार है तो फिर हकीकत में कुरान का भी इनकार है। हदीस एक हुज्जत है, जैसे कि कुरान मजीद हुज्जत है, गो उसका दर्जा अव्वल नंबर पे है, इसका दो। कुरान मजीद में अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो, आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। तो ये जो फरमाया अकीमुस सलाह, नमाज पढ़ो,
अब फजर की कितनी रकतें सुन्नत हैं, कितनी फर्ज है, जोहर में कितनी रकत सुन्नत हैं, कितनी फर्ज है, इसकी तफसील तो कुरान में नहीं है ना, ये तो हदीस में है। अगर आप ये कहें कि ये हदीस हुज्जत नहीं है, फिर तो अकीमुस्सलाह पर कैसे अमल करेंगे? कुरान मजीद में है अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, पूरी तफसील तो अलग हदीस में है, अगर उसको छोड़ दे तो इस आयत को कैसे समझेंगे? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अस्हाबे फील का तफसीली वाक़या तो हदीस में है, उसको छोड़ दे तो ये आयतें कैसे समझेंगे? व अला सलासतिल लदीना खुल्लिफू, अगर वो पूरा वाक़या ग़ज़वा तबूक का जो हदीस में है उसको छोड़ दे तो इन आयत को कैसे समझेंगे? सो ये फितने का मैंने अर्ज़ किया कि दौर है और ये एक मुस्तकिल फितना गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस हदीस की हिफाजत के लिए अफराद पैदा किए हैं, अहादीस के दर्जे मुतय्यन हैं, रावियों के हालात की छानबीन की गई है, हदीस के अल्फाज पर बड़ी मेहनत हुई है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही भी कैफ़ा मुत्तफ़क़ा अल्फाज जमा हो गए इसको हदीस बोल दिया, उसको आयत बोल दिया, बल्कि इसके लिए जब किसी चीज़ की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं तो फिर उसके लिए इंतजामात भी होते हैं। वह हुआ इस्मुन लिन्नज़्म वल माना जमीअन, कुरान मजीद अल्फाज और मानी के मजमूए का नाम है, अल्फाज बोरे मानी है। तीसरी गुजारिश, ये किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की लिखी हुई और ये 2 दिन की कहानी नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये किताब 16 साल में लिखी है, 16 साल इस पे लगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को ये एजाज हासिल है कि बुखारी शरीफ लिखने के बाद 90,000 तलबा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से बराह रास्त बुखारी शरीफ पढ़ी। ये और किसी को ऐसा एहसास नहीं मिला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उम्मत के ज़हीन तरीन लोगों में से थे, बेक वक्त मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे और मुअर्रिख भी थे। सच्ची बात है, सूफी भी थे। इनसे बड़ा सूफी और कौन होगा? हर हदीस से पहले इस्तिखारा, 2 रकत नमाज जी, गुस्ल का एहतमाम, उसके बाद फिर जाकर कहीं हदीस लिखी जा रही है। अगर 4000 हदीसें बुखारी में हैं तो 8000 रकत नफल पड़ेंगे। बहुत सारे हज़रात ने तो इसको तसव्वुफ की किताब करार दिया, कुछ कहते हैं ये तो अजायबात की किताब है, जितना इसके अंदर दस्ते चले जाओ तो अजीब अजीब नुक्ते निकलते ही चले जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी ये किताब ईमान से, तौहीद से शुरू की है। बाबुन कैफ़ कान बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो तमहीद है, किताब का आगाज तौहीद से है, इसका इख्तिताम भी तौहीद पर है। इशारा है कि तो ईमान अकीदा सही होगा, अकीदा सही होगा तो अमाल कबूल होंगे। अगर अकीदा सही नहीं है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अकीदा कोई बहस की चीज नहीं है कि मैं जीता या आप जीत गए और अखबार में किसका नाम आ गया। अकीदा तो एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान की आखिरत की कामयाबी का दारोमदार है। अमाल की कबूलियत मौकूफ है दुरुस्त अकीदे पर। सो हमें अपने रब से दुआएं भी मांगनी चाहिए, अल्लाह मुझे तो ऐसा अकीदा अता फरमा जिसकी बरकत से मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, जिसकी बरकत से मुझे नामे अमाल दाएं हाथ में मिल जाए, जिसकी बरकत से मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर का पानी मिल जाए, जिसकी बरकत से मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाऊं। दुरुस्त अकीदा अगर नहीं होगा, बैतुल्लाह में उल्टा लटक के भी इबादत करोगे तो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। बाजार में अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती है?
अच्छी चाय कहाँ मिलती है, अच्छी लस्सी कहाँ मिलती है, सब मालूम है। खालिस दूध कौन बेचता है, सब मालूम है। ये दीन ही इतना लवारिस है कि सही अकीदे की बात कौन बताएगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और ये उससे मौलवियों के इख्तिलाफात हैं, छोड़ो। डॉक्टर इख्तिलाफात करें तो कोई बात नहीं, डॉक्टरों में थोड़े इख्तिलाफात हैं। एक के बाद जाओ गोली अलग देगा, दूसरा अलग देगा। वो कला में थोड़े इख्तिलाफात हैं, जजों में थोड़े इख्तिलाफात हैं। दुनिया में कौन है जहाँ इख्तिलाफात नहीं है? तो हमने दीगर तो कोई चीज नहीं छोड़ी। कपड़े बेचने वाला यहाँ अलग रेट दे रहा है, वो सामने वाला अलग दे रहा है, तो क्या हम कपड़े खरीदना छोड़ देंगे? तो इस तरह के बहाने बनाकर हमें दीन से दूर नहीं होना चाहिए। अपना अकीदा सही हो और इस अकीदे की हिफाजत मरते दम तक करनी है। इमाम बुखारी ने आखिर में भी किताब तौहीद का जिक्र किया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पहली हदीस जब लाए तो उसमें अपने उस्ताद हुमैदी से रवायत नकल की। आखिरी हदीस जब लाए तो अपने उस्ताद अहमद से रवायत नकल किया। दोनों का मादा एक ही है, हम्द। इशारा है कि मेरी किताब अज अव्वल ता आखिर महमूद ही महमूद। और यही कि अल्लाह ताला की हम्द व सना में सारी जिंदगी बसर करने की कोशिश करो। हदीस के रावी सहाबी, पहली हदीस में इन्नमल अमालु बिन्नियात के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह तआला, और आखिरी हदीस के रावी सहाबी हजरत अबू हुरैरा है रज़ी अल्लाह तआला। दोनों मुहाजिर हैं। लतीफ इशारा है कि अगर इल्म चाहते हो तो हिजरत करनी पड़ेगी। बगैर हिजरत के मुशक्कत के खुद ब खुद कोई चीज हासिल नहीं होती। बिक़द्रिल क़द्र तुक्तसबुल माली मन तलबल उला सहरल लयाली तरूमुल इज़्ज़ सुम्मा तनामु लैलन यगूसुल बहर मन तलबल लाली। इज्जत चाहते हो, बेहतरीन नहवी सरफ़ी मुफस्सिर मुहद्दिस फ़क़ीह बन जाए, सुम्मा तनामु लैलन, और रात को सोए रहते हो, कोई मेहनत नहीं, तो कैसे हो? यगूसुल बहर मन तलबल लाली। जो मोती तलाश करना चाहते हैं उन्हें समुद्रों में गोते लगाने पड़े। तो हिजरत करोगे तो फायदा होगा। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, और आखिरी हदीस कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। इशारा किया है कि अगर नियत खालिस होगी ना, आमाल में वजन पैदा होगा। और अभी हजरत फरमा रहे थे बहुत खूबसूरत बात कि आमाल में जान अगर पैदा करनी है तो दो चीजें चाहिए होंगी, इखलास और इत्तिबाए सुन्नत। हमारे हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ज़ीदा मजदूर फरमाया करते हैं, और बहुत खूबसूरत जुमला है, याद रखना चाहिए। दीन शौक पूरा करने का नाम नहीं, दीन इत्तिबाए नबवी का नाम। मेरा शौक है मैं ये कर लूं तो वो कर लूं, मेरा शौक है मैं रुकू में सूरह यासीन शुरू कर दूं, मेरा शौक है मैं सजदे में सूरह मुल्क पढ़ लूं, तो दीन तो कोई शौक पूरा करने का नाम तो नहीं है, दीन तो इत्तिबाए नबवी का नाम है। सो अगर चाहते हो कि अमल में जान पैदा हो, इखलास हो, इखलास पैदा कीजिए, इत्तिबाए सुन्नत, तो फिर सकीलतान फिल मीज़ान। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिंदगी में जो आखिरी मुलाकात की है वो अपने उस्ताद मिस्र में अपने उस्ताद अहमद से की है। उससे मुलाकात भी सबसे आखिर में हुई, उसकी रवायत भी आखिर में ले। आज अगर हम अपने असातिज़ा को जमा करें कितने हो गए? मैंने एक नौजवान से कहा जमा करो, उसने कहा जी मेरे 40 हैं। एक आलिम ने कहा मेरे 65 बनते हैं। बहुत कोई जोर लगा देगा तो 100 हो जाएंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के सिर्फ असातिज़ा किराम की तादाद 1080 थी, और ये सारे उस्ताद एक जगह नहीं, जैसे आपको एक ही छत के नीचे सरफ वाला भी मिल गया, नौ वाला भी मिल गया, फकीह और मुफस्सिर और मुहद्दिस, हाँ सब यही मिल गए। अंग्रेजी और रियाजी पढ़ाने वाले भी अब मदरसे में मिल जाते हैं।
इमाम बुखारी ने 1080 उस्तादों से मुलाकात एक ही जगह पर नहीं की, कभी मिस्र, कभी कूफा, कभी बगदाद, यूं समझो जैसे कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी लाहौर, कभी पिंडी, कभी पेशावर, कभी दुबई, कभी जो है वह सऊदीया, कभी कहाँ और कभी कहाँ, मुख्तलिफ ममालिक में फिर के मुशक्कत बर्दाश्त कर करके 6 लाख हदीसें जमा की, उनमें से इंतखाब करके फिर ये बुखारी लिखी गई। अल्लाह ताला पूरी उम्मत की तरफ से इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी किताब का आगाज मस्जिद हराम से किया है और आखिर में जब अबवाब उन्वानात कायम करने लगे ना तराजम, तो ये उन्वानात रियाजुल जन्नह में बैठकर लिखे। सो इस किताब की अपनी बरकत है। जहां अल्लाह ताला ने इल्म खूब अता फरमाया, मैंने अर्ज किया उम्मत के ज़हीन तरीन लोगों में से है, वहाँ अल्लाह ने तकवा भी बहुत अजीब अता फरमाया था। फरमाते हैं सारी जिंदगी जब से पता चला गीबत करनी हराम है, मैंने कभी जिंदगी में फिर गीबत नहीं की। और मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक वाक़या अर्ज करके मैं बात समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह समुद्री सफर फरमा रहे थे, जहाज में बैठे हुए थे, करीब में एक बंदे ने दोस्ती लगा ली, देखा कि इमाम बुखारी के जेब में 1000 अशरफियां हैं, 1000 रुपया, उसने निशानी भी रख ली, शोर मचाया मेरा 1000 रुपया गुम हो गया है। जहाज में बाहर से तो बंदा कोई नहीं आया होगा ना, अंदर ही कोई होगा। लो भी तलाशी शुरू हो गई, पूरे जहाज वालों की तलाशी ले ली मगर पैसे नहीं मिले। अब बाद में शर्मिंदगी हुई, बैठ गया, थोड़ी देर गुजरी तो कहने लगा मोहम्मद नाम था इमाम बुखारी, सच बताओ वो 1000 अशरफी क्या की तुम्हारे पास तो थी, मैंने खुद देखी। हजरत ने फरमाया मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया था, अगर वो पैसे बरामद हो जाते हैं ना तो लोग ये समझते हैं कि इमाम बुखारी चोर है। सच क्या है ये साबित होते हुए वक्त लगता। मैं तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जमा कर रहा हूँ, अगर वो पैसे मुझसे बरामद होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर एक तरह का बदनुमा दाग लग जाता कि उनकी हदीसें जमा करने वाला चोर है। मैंने इस बदनुमा दाग को बर्दाश्त नहीं किया, 1000 अशरफियां उठा के समुद्र में डाल। ये नुकसान तो मैंने बर्दाश्त किया मगर ये बदनुमा दाग नहीं लगने दिया। हम सब की एक निस्बत है, उलमा तुलबा को प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की निस्बत हासिल है। हम हदीस के तलब इल्म हैं, हम कुरान के तलब इल्म हैं, हम दीन के मदारिस दीनिया के तर्जुमान हैं, हम अपने उलमा मशाइख के तर्जुमान हैं। कोई ऐसा काम ना करना कल अगला जुर्म करे कि यार ये आलिम होकर ऐसा क्यों करता है, कैसा आलम। खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ भी अच्छा हो। सो अपने अखलाक अपनी तालीम का मुजाहिरा, इस निस्बत की कदर अमली जिंदगी में भी होनी चाहिए। पता चला तहज्जुद तो बड़े एहतमाम से चल रहे हैं, पहली रकत के पहली सफ में नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, हज करने बहुत आसान है, बीवी के साथ हुस्न सलूक मुश्किल है, ये भी शरीयत का हुक्म है जी। जहां नमाज पढ़ना दीन है, तहज्जुद पढ़ना दीन है, मैंने अर्ज किया उसके साथ साथ वालिदैन का एहतराम अदब ये भी दीन है, पड़ोसी के हुकूक की रियायत रखना ये भी दीन है, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखना ये भी दीन है, किसी का माल न दबाओ ये भी दीन है, किसी पर जुल्म ज्यादती न करो ये भी दीन है। बल्कि 4 आने दीन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हिदाया जिल्द अव्वल, 12 आने मामलात। दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं, अपने मामलात को दुरुस्त रखने का नाम भी दीन है। हर मुसलमान की निस्बत, कलमा गो मुसलमान की निस्बत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कल कोई दीन दुश्मन ये ना कहे कि ये नबी का कलमा पढ़ने वाला ऐसा है, नाउज़ुबिल्लाह झूठ बोलता है, इसका नबी कैसा होगा,
ये साहबी का नाम लेने वाले की नमाजें ऐसी हैं, नमाज नहीं पढ़ता, तिलावत नहीं करता, झूठ बोलता है और बुग़्ज़ और कीना और रियाकारी इसमें पाई जाती है। नाउज़ बिल्लाह, ये जिन साहबा को चाहने वाला वो कैसे होंगे? देखा आपने, हमारी कमजोरियों की वजह से हमारे बड़ों को निशाना बनाया गया। इस तरह की महफिल में शरीक होकर आदमी को ये दर्स लेना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी के रुख को ठीक करना है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे दावत और तबलीग वाले हजरात इस पर मेहनत कर रहे हैं, खानकाएं इस पर मेहनत कर रही हैं, मदारस में भी यही मेहनत हो रही है। ये सबक हमें हमारे उस्ताद ने बताया। हदीस में देख लो, ये इमाम बुखारी के हालात हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर तो सारी जिस्में माशाल्लाह जारी हैं, हमें सबसे फैज़ लेना चाहिए और ये नेमत अपने अंदर पैदा करो। इंसान, मैंने चंद दिन पहले भी एक बात अर्ज की थी, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। इंसान अपनी जबान के पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है, जब वो बोलता है तो उसकी कीमत मालूम हो जाती है। सो अपने अखलाकियात अमली जिंदगी में बेहतर होने चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जाते जाते हमारी एक जिम्मेदारी लगा दी। बाप तो आखिरी है मगर जिम्मेदारी बड़ी सख्त है। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। उलमा शारिहीन फरमाते हैं ये रद है मुअतज़िला पर। ये मुअतज़िला पर रद है। किस तरह? मुअतज़िला का ज़हन ये था कि ये दाल चावल और दीगर चीजें इनका वजन होता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक नमाज तोली जाएगी तो अक्ल में समझ नहीं आती, तलावत कैसे तोली जाएगी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाप बांधा कि तोली जाएगी। क्यों? कुरान में वल वज़्न यौमइज़िन हक़ व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। आमाल के साथ कौल को अलग किया, हालांकि वो दाखिल है, ताकि फिक्र पैदा हो कि ज़बान से गलत बात ना निकाली जाए। वजन होगा और हदीस से भी साबित कर दिया थक़ीलतान फ़िल मीज़ान। और अब तो ये कहा ही नहीं जा सकता, अब तो साइंस भी कहती है वजन होगा। देखो, हम बुखार का वजन कर रहे हैं, शुगर का वजन कर रहे हैं, गर्मी सर्दी को तोल रहे हैं। अगर इंसान इन चीजों का वजन कर सकता है तो रब जो सारी कायनात का खालिक है वो नहीं वजन कर सकता। मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या निकली कि बातिल कभी दीन में कोई नई बात अगर इजाद करे उसका रद्द करना यह भी उलमा का काम। दीन की हिफाजत इस तरह भी होगी कि आप नमाज को आगे पहुंचाओ, आप नमाज पढ़ो, तिलावत करो, लोगों को नमाज पे खड़ा करो, जैसे मैंने अर्ज किया कि माशाल्लाह हमारे दावत और तबलीग से मुंसलिक साथी कर रहे हैं ये काम। लेकिन अगर कोई बातिल ताकत, गलत अकीदा, गलत चीज, बिदात, रसूमात दीन में पैदा करें, उसकी सरकोबी करना भी अहले इल्म का काम है, जो उलमा हर मौके पे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये बाब कायम करके आखिर में इसी की मुनासबत की हदीस जिक्र की है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। वो जो 16 साल से जो मजलिस कायम थी ना, आज समझो उस मजलिस का इख्तिताम है। और दौरे हदीस के तलबा की 1 साल से जो मजलिस कायम थी, आज उस मजलिस का इख्तिताम है। मजलिस के इख्तिताम की ये दुआ है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और जाते जाते एक मुस्तनद वजीफा दे दिया। उमूमन लोग गैर मुस्तनद वज़ाइफ के पीछे पड़ जाते हैं। सो गैर मुस्तनद वजीफा जिसमें कुफ्र और शिरक भरा हुआ हो उसको नहीं, उन वज़ाइफ को पढ़िए जो मुस्तनद है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ने हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का कौल मारिफ़ुल कुरान में नकल किया है। हज़रत फरमाते हैं हर नमाज के बाद, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अहले मोहल्ला से भी दरखास्त है, हर नमाज के बाद कुल वल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास, आखिरी 3 सूरतें पढ़ा खुसूसन मगरिब और इशा, फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ने चाहिए। हज़रत फरमाते हैं इंसान के लिए खाना खाना, पानी पीना, बल्कि सांस लेना इतना जरूरी नहीं जितना इन सूरतों को पढ़ना जरूरी है। सो अल्लाह का जिक्र करने से दिल को इत्मीनान हासिल होता है।
जैसे छोटा पौधा पानी देते रहो तो नशो नुमा हासिल कर लेता है, ऐसे इंसान का बातिन अल्लाह की जिक्र से नशो नुमा हासिल करता है। उसे पानी देना छोड़ दोगे तो मुरझा जाएगा। सो ऐसी अगर हम अल्लाह का जिक्र छोड़ देंगे तो बज़ाहिर तो चलते फिरते होंगे, अंदर से मरे हुए होंगे। और ये बात हदीस में मौजूद है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर मसलुल हय्य वल मय्यत। जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। जिक्र में आला दर्जे की चीज कुरान मजीद है। और मैं दरख्वास्त करूंगा खुद भी अल्लाह का कुरान रोजाना थोड़ा बहुत पढ़ा करो, रोजाना थोड़ा सही मगर पढ़ो जरूर। हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ जानवी शहीद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कम से कम एक पारा पढ़ना चाहिए, एक पारा। और अपनी औलाद को भी दीन, दुनिया के चंद टकों की खातिर अपने बच्चों को दीन से मारूम न करो। एक मरकजी और मयारी इदारा आपके मोहल्ले में मौजूद है। पिशावर, गिलगित, कश्मीर, पूरे मुल्क के हर सूबे से लोग यहाँ आकर फैज हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और अपने अपने इलाकों में जाकर दीन का काम कर रहे हैं। यकीनन ये अहले मोहल्ला के लिए और आप सब के लिए एहसास की बात है। कहीं ऐसा न हो कि बाहर के लोग यहाँ आकर सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात वो वसूल करके चले जाएं और मकामियों को कुलवल्ला भी ना आती हो। ऐसा ना करना। आपको अपने इस इदारे का दायां बाजू बनना चाहिए। इसकी खुशी गमी को अपनी खुशी गमी समझना चाहिए। इसका सबसे बड़ा तामन ये है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को एक ही छत के नीचे इन्होंने आपके लिए स्कूल, बनीन, बनात, सरफ, नौ, फिक़्ह, हदीस, तफसीर सारे उलूम जमा किए हैं और चोटी के असातिज़े किराम चुन चुन के पूरे मुल्क से यहाँ लाकर जमा किए हैं। ये इन हज़रात की बहुत बड़ी मेहनत है। उसका तकाजा यह है कि अहले मोहल्ला को इससे फायदा उठाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हमें मुस्तनद वजीफा दिया है। रिज़्क में इजाफे का सबब भी ये वजीफा बनेगा। जो रिज़्क के एतबार से परेशान है उन्हें 100 दफा सुबह और 100 दफा शाम ये कलमा पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान के यहाँ ये बड़ा महबूब तरीन कलमा है और ज़बान में बड़ा हल्का है मगर है बहुत वज़नी। सबको हो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मजलिस में बहुत सारे उलमा मशाइख तशरीफ रखते हैं, उनकी मौजूदगी में साजिद का इस मसनद पर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल हुक्म था तो मैं बैठ गया। उन हज़रात को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मेरी बातें मोहब्बत से सुनी। मैं इन्हीं गुजारिशात पे इक्तफा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।